ओके, लेट मी सॉल्व इट ना. मी फक्त म्हटलं की एक दिवस आपण असं करून बघूयात, नाही का? हा म्हणजे okay, hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and offline lecture for 11th maths. So we will continue with exercise 2.2 for 11 maths. Exercise 2.2 में हम question number 10 solve कर रहे हैं. Okay, let's check this question. If cosec theta is plus cot theta is equal to 5, then evaluate sec theta. Now first of all, let me convert this into sin and cos. तो ये बनेगा 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta is equal to 5, correct? Okay, can I take the LCM there? It will become 1 plus cos theta upon sin theta. तुम लोगों ने ऐसे ही किया था ना? Is equal to 5. So I'll transfer this sin theta over there. 1 plus cos theta is equal to 5 sin theta. सही है? फिर क्या आएगा? नाउ हाँ करेक्ट, आई हैव टू स्क्वायर दिस बोथ, सो आई स्क्वायर इट. तो क्या मिल जाएगा? 1 plus 2 cos theta plus cos square theta is equal to 25 sin square theta. Now I want sec theta, which I can obtain from cos theta. तो यहां पर मैं cos theta लेके आ सकता हूं जी, 1 minus cos square theta. इसको ऐसे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So when you open the bracket, what is this going to give you? 25 minus 25 cos square theta, correct? Now I'll transfer everything here on the LHS. 1 plus 2 cos theta plus cos square theta. I'll transfer it and I'll transfer this also. Minus 25 इधर आके plus बनेगा. So 25 plus 1, 26 cos square theta plus 2 cos theta. 25 minus बनेगा, 1 minus 25 is minus 24 is equal to 0. I'll divide throughout by 2 now. Throughout अगर 2 से divide कर ले, आपने किया था 2 12, 2 2 गया and this is 230. What do you get there? बोलो. 13 cos square theta plus cos theta minus 12 is equal to 0. ठीक है? I want two numbers. कैसे करेंगे इसको? It is plus 13 and minus 12. सही है? So 13 cos square theta plus 13 cos theta minus 12 cos theta minus 12 is equal to 0. क्लब करेंगे किसको? इसको और इसे भी, करेक्ट? तो क्या बन जाएगा? यहां से मैं 13 cos theta कॉमन ले लूं, क्या बनेगा? 13 cos theta taken common. So what do you get inside the bracket? Cos theta plus 1 minus 12 taken common. This is cos theta plus 1 is equal to 0. Again I'll take this cos theta plus 1 common and this is 13 cos theta minus 12 is equal to 0. So the product is 0, मतलब cos theta plus 1 is equal to 0 or 13 cos theta minus 12 is equal to 0. So यहाँ से cos theta is equal to क्या आएगा? minus 1 और cos theta is equal to 12 upon 13. We know that this sec theta is equal to 1 upon cos theta. Making use of this, I will take the reciprocal here. So the final answer would be sec theta is equal to 1 upon minus 1, that is minus 1, or sec theta is equal to 13 upon 12 is the answer. तो आप लोगों को एक ही आंसर कैसे आया मुझे नहीं पता. का बरे लिहायला हवी ना बरे. तुम्हारा कहाँ गड़बड़ हो गया?
वेयर डिड यू गो रॉन्ग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। okay, if cot theta is equal to 3 by 4, cot theta is equal to 3 by 4 and theta is lying in which quadrant they are given? कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहे हैं? yes, theta is lying in which quadrant? this is 0, pi by 2, pi, 3 pi by 4 and 2 pi. They say theta is over here. So theta is in the third quadrant. हम क्या बोलेंगे? All silver tea cups. tan positive. और tan का reciprocal cot भी तो positive ही है. I want cosec theta and cos theta. How do I do that? देखो कैसे करेंगे? तो बेसिकली आप कॉट वगैरह में सॉल्व करने से बेहतर है, या तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू, देयर इज वन फार्मूला विच कनेक्ट्स कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा. आपको पता है कौन सा फार्मूला है वो? देयर इज वन फार्मूला विच कनेक्ट्स, वी नो दैट 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Correct? Do we know this formula? And can I use that formula? इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं तो कोसेक को पहले लिख लेते हैं. क्या बनेगा बताइए? यस, दिस विल बिकम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus cot स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर. क्या आएगा बताइए? 1 plus 9/60. एलसीएम लेने के बाद आएगा 25/60 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. सही है? टेक द स्क्वायर रूट. Take the square root. Therefore, what is cosec theta is equal to plus the 5/4 or cosec theta is equal to minus 5/4. यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव है, मतलब साइन एंड कॉस क्या होंगे? निगेटिव होंगे ना. तो इसका मतलब है सेक एंड कोसेक भी क्या होंगे? निगेटिव, है ना. तो आई शुड निगलेक्ट दिस लाइन, दिस वैल्यू, एंड आई शुड सिलेक्ट माइनस वाला है. रीजन क्या होगा इसका? रीजन इज वेरी सिंपल, थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट. ये रीजन होगा उसका. समझ में आ गई बात? नाउ देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन थीटा विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, एंड देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5. नाउ आई नो ऑल दीज थिंग्स हियर. क्या क्या पता है मुझे बताइए? What all things I knowing? यहाँ पे इसकी मदद से, cot थीटा की मदद से मैं इसे लिख सकता हूँ, cot का रेसिप्रोकल tan थीटा क्या होगा? is equal to 4/3. So I'll transfer cos here and this value over here. तो क्या बन जाएगा? Therefore -4/5 divided by 4/3 is equal to cos theta, and therefore cos theta is equal to क्या बन जाएगा बताओ? This will get cancelled और ये ऊपर चला जाएगा. So what is this going to give me? -3/5. Is this okay? So this is cos theta. This is sin theta that we have already found out. tan theta है यहाँ पे. अब मुझे क्या क्या चाहिए? cos चाहिए और cosec चाहिए. अगर मुझे sin theta पता है तो यहाँ पर मैं उसका रेसिप्रोकल क्या लिखूंगा? cosec theta is equal to 1/sin theta, and that is equal to therefore cosec theta is, यहाँ रेसिप्रोकल होगा ना उसका, तो क्या हो जाएगा? -5/4. -5/4. So I got this also. Now what is the required expression? Required expression बताइए. Sorry, हाँ this side, हाँ
देखो यहाँ पे, I'll explain this once again. ये वाला साइड ना, tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस. मेरे पास साइन का वैल्यू है यहाँ पे और tan का वैल्यू एज इट इज लिखा. तो cos थीटा के लिए मैं cos थीटा वहाँ पे ट्रांसफर करूँगा और ये नंबर इधर आएगा, है ना. तो cos थीटा यहाँ पे गया और 4/3 नीचे आ गया. I'll cancel this 4 and 4. Now this 3 will go up in the numerator, so this will become -3/5. cos थीटा यहाँ पे लिखा और -3/5 यहाँ पे लिखा. Is this okay? Correct? Now similarly cosec theta is the reciprocal of sin theta. So the required expression is, what is the required expression? 4 cosec theta plus 5 cos theta. 4 cosec theta plus 5 cos theta is equal to, let us substitute there. What is the cosec theta का value? 4 times -5/4 plus 5 times cos theta is what? -3/5. कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, 4 gets cancelled. So what remains over there? -5 -3, that is equal to -8 is the answer. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है. So that was question number 11. क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोट एक्सप्लेन करता हूँ. नोट, व्हाट इज दैट नोट? यू नो व्हाट इज मेंट बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है आपको? नहीं? ओके, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये पता है? ये भी नहीं. चलिए कोई बात नहीं. मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. origin y axis. Now this number is p. It's having coordinates x comma y. मतलब if I drop a perpendicular over here and perpendicular over here, so this distance is x. I mean coordinate is x यहाँ पे and this is y. Correct? तो उसके coordinates x comma y हो जाएंगे. Alright, this point is called as origin, which is the point of intersection of x and y axis. Yes or no? Now the same diagram I will copy. I'll copy the same diagram. ठीक है, over here. डायग्राम सेम है, पॉइंट भी सेम है. डायग्राम इज सेम, द पॉइंट इज सेम, लेकिन इसे मैं x इज इक्वल x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट नहीं कहूंगा. तो व्हाट आई विल कॉल दिस एज? आई विल कॉल दिस एज द लाइन थीटा इज इक्वल टू 0 and this line is called as theta is equal to pi/2 and this point is called as pole. and ये जो point P है उसके coordinates instead of x and y, I will call this as r and theta. Now what is r? r is the distance of this point from this pole, इसे r कहते हैं, and this angle is theta. समझ में आ गया? Rest all is same. ठीक है. Now I'll drop a perpendicular. I have dropped the perpendicular from here. This perpendicular is PM and this perpendicular is PN. Is this okay? Now we very well know that this distance is x and this distance is y. Correct? If I'll consider the triangle PMD, in this triangle, can you tell me what is sin theta is equal to and what is cos theta is equal to as per our previous definition? Sin theta is opposite side upon hypotenuse. So this is PM upon OP. Yes or no? That means what is sin theta is equal to? Sin theta is equal to PM. PM को अगर हम गौर से देखें तो this PM is nothing but this ना. I mean it is y ना. Correct? So I'll call this as y upon OP is equal to r. Can you say so? Correct है? Similarly, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. So what is the adjacent side? OM. It is OM upon OP. Now I know that this OM is nothing but x. Correct? So I'll substitute here cos theta is equal to x upon r. I hope this is clear to you all. Alright.
Now let me cross multiply. Therefore, what is y is equal to r sin theta. What is x is equal to r cos theta. So we say that this is the connecting formula between, अब ये जो r and theta है ना, ये जो हमने r and theta देखा है, these are called as polar coordinates. क्या कहते हैं इसको? polar coordinates. मतलब उसी चीज को दिखाने का ये अलग तरीका है. These are called as polar coordinates. और x and y जो होता है उसको क्या, कौन से coordinates कहते हैं? Cartesian coordinates. Is this clear to you all? Any doubts about that? समझ में आया सबको? Now what we do is, let me square and add this. I will square and add. So when we square and add, what do we get there? This will give me x square plus y square is equal to x square मतलब r cos theta का स्क्वायर है ना, and y square मतलब r sin theta का स्क्वायर. सही है? So that will give me x square plus y square is equal to r square cos square theta plus r square sin square theta. Can I take r square common? ब्रैकेट में क्या आएगा? cos square theta plus sin square theta. Okay, and but we know sin square theta plus cos square theta is 1. So what do we get there? Therefore x square plus y square is equal to r square. If I take the square root, what I get there? Therefore r is equal to square root of x square plus y square. Is this okay? Any doubts about this? Alright, so ये एक बहुत important formula है. Similarly, if I'll take the ratio of these two, take ratio. If I'll take the ratio of y upon x, y मतलब क्या है? r sin theta. x मतलब क्या है? r cos theta. r gets cancelled. And what do we get then? Give me, बोलिए. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta is tan theta. So tan theta is equal to y upon x, isn't it? अगर tan को इस तरफ भेज देते हैं, आप 12th में जाके देखेंगे, it is called as tan inverse of y upon x. ठीक है, आप इसको अभी फिलहाल याद रखो, लेकिन एक्चुअली याद रखना है आपको tan theta is equal to y upon x. इसको याद रखना पड़ेगा. Is this okay? Any doubts about that? Any doubts about that? समझ में आ गया? So this is the formula which connects the Cartesian or rectangular coordinates and the polar coordinates. ब्लू कलर में दिए हैं पोलर, ब्लैक कलर में दिए हैं रेक्टेंगुलर, और बॉक्सेस यहाँ पर दिए हैं वो जो क्या है, कनेक्टिंग फॉर्मूले बिटवीन द रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. इज दिस ओके? तो अगला क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 12. क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स. कार्टेशियन फाइंड आउट करना है मतलब x, y फाइंड आउट करना है. whose polar coordinates are given by this. Polar coordinates मतलब this is r and this is theta. समझे? This is r and this is theta. Correct है? So I have to find out x, y. It's very simple. What is the formula for x, y? X is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Substitute कर ले. So what is this going to give me? First question, if I am talking about r is equal to 3. So this is 3 cos 90 degree. X is equal to 3 cos 90. Y is equal to 3 sin 90 degree. Is this okay? Now we know the table. आपको पता है ना table? 0 degree, 90, 180, 270 and 360. Correct? And if I write down the table like this, I need to find out sine and cos and tan. Okay, sine of 0 is 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 minus 1, minus 1, 0. और यहाँ पर क्या आएगा? ये वाला 0 upon 1 is 0, 1 upon 0 is not defined, this is again 0 and this is not defined. Yes or no? I hope you know this table well. है ना?
ये टेबल मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा शायद, राइट? isn't it? So with the help of this table, what we can say here, what is cos 90? We can say cos 90 मतलब ये है रहा cos और ये है 90. So cos 90 is 0 and sin 90 कितना आएगा? 1. Is this okay? So let me just substitute here. What is x is equal to 3 times cos 90? Cos 90 is 0 and therefore x is equal to 0. Similarly, y is equal to 3 times sin 90 is 1 and therefore y is equal to 3. Is this okay? Similarly, ये जो दूसरा दिया है ना, I want you all to do this as a homework. Is this okay? This will be done as a homework. अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अभी हम. The next question we go from question number 15. Question number 15. Find the polar coordinates. क्या find out करना है? Polar coordinates मतलब क्या find out करना है जी? R and theta find out करना है. Whose Cartesian coordinates are given? Whose Cartesian coordinates are given? So Cartesian मतलब this x comma y is given. I'll go for it one by one. एक एक करके इसको solve करते हैं. Now ये करते समय instead of using the formula, we will try to draw the diagram. जब आपको पोलर से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या जिसे कार्टेशियन भी कहते हैं ना, वो फाइंड आउट करना होता है ना, तो ड्रॉ द स्केच, तो वो आपको आसान कर देगा क्वेश्चन को. सो वी विल ड्रॉ द स्केच. इज दिस ओके? ठीक है. सो वी आर गिवन x, y इज इक्वल टू 5, 5. मतलब x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5. सही है. फॉर्मूला तो मेरे पास है. अगर मुझे r और थीटा चाहिए तो आई कैन से r इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला देखा था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. एंड थीटा के लिए क्या फॉर्मूला देखा था, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट, क्योंकि मैं फिर इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. सो दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, 5, 5 इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो, है ना. इफ आई से दिस इज x एक्सिस and this is y axis, ये रहा origin and point है P. what is P? 5, 5. तो हाँ, तो मतलब ये x axis है 5 पर और y axis के यहाँ पर भी क्या है, वो 5 है. and now what I'll do is I'll join this with origin. तो ये होगा मेरा r और ये होगा थीटा, करेक्ट. अब एक बात बताइए मुझे कि भाई अगर ये 5 है ना, ये दिस इज 5 मतलब दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5 एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज इक्वल. सो इज दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है. आइसोसेलेस है तो इस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, करेक्ट. सो आई विल डायरेक्टली से हियर कि भाई थीटा इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री. That means theta is equal to pi by 4 रेडियन. समझ में आ गई बात? Is this okay? समझे क्या? Similarly, अगर मुझे चाहिए ये क्या है? ओके. हेलो कृष्णा, हाय निखिल. करतो ना, सांगतो ना. इट्स व्हेरी सिंपल. इट्स वेरी सिंपल. आर के लिए क्या करना पड़ेगा, नो यू नो आई विल यूज द पाइथागोरस. कैन आई यूज पाइथागोरस फॉर दिस? बराबर है क्या? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सिंपल. सो आई डायरेक्टली से हियर
हियर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 25 प्लस 25, दिस इज 50. 50 I'll write it as 25 into 2 and उसमें से 25 बाहर आएगा. So I'll get r is equal to 5 root 2 and theta is equal to pi by 4 radian. Is this okay? So in this way we can find out what is the r and theta, but with the help of sketch draw करना यहाँ पर better होता है क्योंकि आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. दादा यादव, दिस चॅप्टर इज, हा चॅप्टर सुरू आहे 11वी मॅथमॅटिक्सचा ट्रिग्नॉमेट्री. इथे याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे बघा, तिथे स्क्रीनवरती लिहून येतं 11th मॅथ्स 1 ट्रिग्नॉमेट्री, उसका 8 पार्ट. ठीक है, स्क्रीनवरती लिहून आलेला आहे, तोच चॅप्टर चालू आहे, ट्रिग्नॉमेट्री 1. संपेल आता हा चॅप्टर. ओके, आता पुढे जायचं आपल्याला. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ. तो इसी तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं. इफ आई गो फॉर द सेकेंड नाउ, सेकेंड वाला अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, दिस इज 515 मेगा 2, 15 मेगा 2. What is given there? X comma y is equal to 1 comma root 3. 1 comma root 3. ठीक है, 1 comma root 3 है. तो अब हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. द डायग्राम इज समवट लाइक दिस. देख लीजिएगा, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, यस अंजलि, हेलो अंजलि कुमारी. 2 आंसर्स 2. तो किसका आंसर 2 होगा? यस, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट अंजलि. सो अब मुझे यहाँ पर ये ड्रॉ करना है. हाँ, तो आई हैव टू शो हियर नाउ 1 इज गोइंग टू बी ओवर हियर एंड रूट 3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.732, मतलब इस 1 से ज्यादा होगा वो. तो आई विल शो इट ओवर हियर. इज दिस ओके? एंड दिस इज पॉइंट पी. रोजचा हाच टाइम आहे का सर क्लासचा? हो, हाच टाइम असतो दररोजचा क्लासचा, 5:30 ते 7:30, 5:30 to 7:30, 5:30 to 8:30. ओके, सो दिस पॉइंट इज P, 1 comma root 3. ओके, सो आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ठीक है, दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज root 3. Now I will join this with the origin like this. I'll join it like this. This is point R and this is distance R and this is theta. मुझे find out करना है R and theta. Agree? Okay. So नहीं है ना 45. It will not be 45. आप लोग बताओ मुझे क्या आएगा. R तो इस तरीके से मैं find out कर सकता हूँ, लेकिन थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? If you see this carefully, यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो इसको, तो ये 90 डिग्री है एंड दिस इज रूट 3 एंड दिस इज 1. तो tan थीटा कितना हो जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू? tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, करेक्ट? ओके, अपोजिट साइड इज रूट 3. तो ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका tan थीटा रूट 3 होगा? हमारे पास टेबल तो है ना. तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. यस अंजलि, आर का वैल्यू 2 आएगा, एकदम करेक्ट है, वेरी करेक्ट. सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको हम π/3 रेडियन कहेंगे. तो थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया, लेकिन आर के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, वेरी करेक्ट अंजलि, 60 डिग्री एंड r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3 plus 1 4 and therefore r is equal to 2. Absolutely correct, very correct अंजलि, बहुत अच्छा. Is this clear to you all? समझ में आ गया? सो डायग्राम की मदद से अपने को ये बहुत आसानी से मिलेगा. 15 में का 3 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये थोड़ा सा स्टार टाइप का या हाफ स्टार बोल सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को. दिस इज हाफ स्टार क्वेश्चन आई वुड से. क्या दिया है 15 में का 3? जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू.
r is this is -1 comma -1, ठीक है, this is given as -1 comma -1, this is x and y coordinate. -1 comma -1 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट क्वाड्रेंट दिस विल lie in? It will lie in the माइनस कहां पर होता है जी? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. So this is also -1. X coordinate is -1, y coordinate is also -1. This point P is over here. ठीक है, this is point P. P से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस तो इस प्रकार से मिलेगा. ठीक है, एंड इफ आई ज्वाइन इट विद द ओरिजिन, ज्वाइन करेंगे अगर ओरिजिन के साथ तो मुझे वो जो डिस्टेंस रहता है ना ओरिजिन से उसे कहते हैं r, एंड ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा. नाउ आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस इज अगेन यस वेरी करेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा अंजलि. ये दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज अगेन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. इसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो नेचुरली ये एंगल 45 डिग्री होगा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री. बट रिमेंबर आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल, तो ये 180 प्लस 45 हो जाएगा. सो थीटा मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पर. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं तो थीटा कितना होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 225 डिग्री. 225 डिग्री ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा, लेकिन उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेडियन में. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय पाई बाय 180, करेक्ट? सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय पाई बाय 180 this will become 45 4s and 45 5s. तो थीटा का वैल्यू रेडियन में आएगा 5 पाई बाय 4. ओके, एंड आर कितना आएगा? नाउ दिस डिस्टेंस इज 1 and 1 आएगा, करेक्ट? यस, हाँ. तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आप यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो दिस इज गोइंग टू बी -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. करेक्ट है अंजलि, तुम्हारा आंसर √2 सही है, राइट? r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो दिस इज गोइंग टू बी √2. एनी डाउट्स अबाउट दैट? इज दिस ओके? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट नाउ. अगला क्वेश्चन हम करेंगे, कौन सा सॉल्व करते हैं? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. 4 क्वेश्चन नंबर 4 इज -√3, 1. Very interesting question. Fourth question. This is question number 15. Make a 4 -√3, 1. -√3, 1. This is going to be x, y. Can you please tell me the quadrant in which this will lie? In which quadrant this is going to lie? माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा जी? It's going to be in which quadrant? Second. Yes, it's in the second quadrant. सही है. Okay, so I'll say this is x axis, ये है y axis, and -√3 यहाँ पर आएगा और 1 उससे काफी कम होगा ना. It's over here, and our point P is going to be over here. So if I'll drop a perpendicular from P, it's like this. ठीक है? Yes, second quadrant. Very good. अब मुझे यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है. I'll join it. Come on, क्या आएगा? Let me join it with the origin. This is point O. This is R and this is theta. क्या बोलोगे आप लोग, बताइए मुझे. I want to find out R and theta. Now look at this very carefully. अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की तरह इसको देखते हैं, इफ यू लुक एट इट लाइक अ ट्रायंगल, ओके, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर गोइंग टू बी द डिस्टेंसेस? इसके डिस्टेंसेस क्या होंगे जी? क्योंकि कोऑर्डिनेट माइनस होता है लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना हमेशा. कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव बट द डिस्टेंस इज, हाँ. सो दिस डिस्टेंस इज 1 एंड दिस डिस्टेंस इज √3. ये 1 है और ये √3 है एंड दिस इज 90 डिग्री. एंड इफ आई कॉल दिस एज अल्फा, अगर मैं इसको अल्फा बोल देता हूँ, ये तो टोटल थीटा होगा, बट आई विल फाइंड आउट अल्फा. कैन यू टेल मी व्हाट इज tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू? tan ऑफ अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. व्हाट इज द अपोजिट साइड? 1, एडजेसेंट साइड √3. ऐसा कौन सा एंगल होता है जी जिसका tan रेशियो 1/3 1/√3 होता है? आपको तो ये पता होगा.
0, absolutely correct. 30 degree, not 60. 0, 30, 45, very correct अंजलि. So theta is equal to, sorry, alpha is equal to क्या आएगा यहाँ पे? Alpha is equal to क्या आएगा यहाँ पे? 30 डिग्री. करेक्ट, वेरी करेक्ट. अगर ये अल्फा है तो थीटा प्लस अल्फा इज 180, है ना? यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर इफ आई सब्स्टिट्यूट थीटा प्लस 30 डिग्री is equal to 180 degree, and therefore theta is equal to 180 minus 30, and that is going to be 150 degree. Is this clear to you all? Similarly, if I know this, मैं सीधा सीधा x और y को substitute करके I'll substitute here in this. This will become r is equal to square root of x square plus y square, and that will give me square root of x square, मतलब minus root 3 का square plus 1 का square, correct? प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए मुझे? सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस इज 3 + 1 4 एंड r इज इक्वल टू 2. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. समझ में आया सबको? ठीक है. सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? हाफ स्टार क्वेश्चन बोलूंगा. आई विल कॉल दिस एज हाफ स्टार क्वेश्चन. आई होप दिस इज ओके. ऑलराइट, तो दिस क्वेश्चन नंबर 15 इज ओवर. अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. बस एक ही क्वेश्चन रह जाता है. फिर उसके बाद हम मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर शुरू करेंगे. मिसलेनियस में से कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, और इसमें से मैं आपको बता दूं, आई विल बी सॉल्विंग दीज 2 क्वेश्चंस. ये मैं सॉल्व करूंगा और ये भी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में. अभी हम मेरे ख्याल से रुक जाते हैं, एंड मेरा अगला लेक्चर, अब मैं ये वाला लाइव स्ट्रीमिंग बंद करके मैं शुरू करूंगा 12th स्टैंडर्ड. तो दोज हु आर ऑनलाइन जो लोग हैं, अंजलि इज देयर, अंजलि कुमारी, तो 12th स्टैंडर्ड का मैं फिजिक्स का लेक्चर लेने वाला हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. मुझे पता नहीं आप 11th में हो कि 12th में हो, आई डोंट नो. ठीक है, सो चलिए, सो विल कंटिन्यू. आई विल स्टॉप हियर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, और इसमें PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर आवर वीडियोस. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच.